আজ থেকে শুরু সংসদের বাজেট অধিবেশন। এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি ঢুকতে চলেছেন, সংসদে প্রবেশ করবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন দুপুর 1:30টায় এনডিএর সমস্ত সাংসদরা সংসদ ভবনে আসবেন এবং সেখানে আমরা জানি যে আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার 1 ফেব্রুয়ারি পেশ হবে কেন্দ্রীয় বাজেট। আজ সকাল 11টা থেকে এই অধিবেশনের সূচনা হবে। বাজেটের আগে আজ সংসদে অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করবেন এবং আগামীকালের যে বাজেট সেই বাজেটের আগে বাজেट अधिवेशन। समारोहिक प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब का अपना महत्व होता है क्योंकि ये रेखांकित करती हैं इस प्रक्रिया के महत्व को भी कि किस तरीके से भारत एक गणतंत्र के तौर पर आज अपने इतिहास पर गर्व कर सकता है, अपने वर्तमान के संकल्प के साथ भविष्य की ओर सिद्धि के लिए अग्रसर है आज का भारत। ये दृश्य जो हमें हमारे इतिहास का गौरव पर भी गर्व करने का एक मौका देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे आज के वर्तमान के भी खूबसूरत दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बग्गी में संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल गार्ड्स जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं, और ये घोड़ों की पच्चाप, घोड़ों की टापों की आवाज जो अलग ही अनुभूति दे रही है इस वक्त इस दृश्य में। 26 जनवरी को जब हमने अपने गणतंत्र पर गर्व की अनुभूति की, 26 जनवरी जब हमने देखा किस तरीके से हमारे गणतंत्र ने 75 वर्षों का सफल सफर पूरा किया, और उसके बाद आज जब बजट सत्र का आरंभ होने जा रहा है, तब ये दृश्य हमें हमारे देश के गौरव को दोबारा अपने मन में एहसास पैदा कर रहे हैं। हमारे देश का गौरव जिस पर आज सभी भारतीय गर्व कर रहे हैं, हमारे देश का इतिहास, वर्तमान और उसके बाद अब भविष्य के लिए जिसको तैयार करना आज हमारे हाथ में है। प्रधानमंत्री ने भी इसी तथ्य को रेखांकित किया कि आज की युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सकती है। और आज जब राष्ट्रपति संसद भवन की ओर बजट सत्र से पहले प्रस्थान कर रही हैं, तो कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो सभी बिंदु स्थान पाएंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, वो तमाम बिंदु जिनमें भारत के ही उपलब्धियों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से भारत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, किस तरीके से भारत अपने नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आज तक सरकार ने जो कुछ कहा वो हासिल किया और कैसे नए लक्ष्यों की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक पूरी तस्वीर होगी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामने रखी जाएगी। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, जब राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचते हैं और संसद को আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি এসে পৌঁছেছেন। সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন আজ দুপুর 1:30টায় এনডিএর সমস্ত সাংসদরা উপস্থিত হবেন সংসদ ভবনে। আগামীকাল বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে আজ অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। বাজেটের আগে আজ সংসদে অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং গত এক বছরে দেশের অর্থনীতি কি অবস্থা ছিল, কি অবস্থায় দেশের অর্থনীতি ছিল, সেই সমস্ত বিষয় এই রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হবে। এবং গত আর্থিক বছরে দেশের অর্থনৈতিক হাল কেমন ছিল, জিডিপি বৃদ্ধির হারই বা কেমন হতে পারে, এই সমস্ত রিপোর্ট থেকে বেশ বিষয়টা স্পষ্ট হবে। এবং শুক্রবারই উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর যৌথ ভাষণ দিয়ে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের পরেই অর্থমন্ত্রী লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পৃথক অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করবেন।
এবং আগামীকাল টানা অষ্টমবারের মতো কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী। সংসদ অধিবেশনের আগে বৃহস্পতিবারই আমরা দেখি যে সর্বদলীয় একটি বৈঠক হয়, যার সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এবং সর্বদলীয় বৈঠকের সময় বিরোধী দলগুলি সংসদীয় কমিটির রাজনীতিকরণ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে তার এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেছে। বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরা হয় বৈঠকে। তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। গত আর্থিক বছরে দেশের অর্থনৈতিক হাল কেমন ছিল, জিডিপি বৃদ্ধির হার কেমন হতে পারে, এই সমস্ত বিষয় রিপোর্ট থেকে খানিকটা স্পষ্ট হবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজেট যে অধিবেশন, সেই অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। প্রথম পর্যায়ে আজকে যে অধিবেশন রয়েছে, অর্থাৎ বাজেট পেশের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণ দিয়ে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। এবং আগামীকাল অর্থাৎ 1 ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এছাড়া প্রথম পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন এবং বাজেট নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তিনিও বক্তব্য রাখবেন। এই মুহূর্তে যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করতে চলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই মুহূর্তে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সংসদে বাজেট অধিবেশনের সূচনার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। দুপুর 1:30টায় এনডিএর সমস্ত সাংসদরা সংসদ ভবনের আসবেন এবং সেখানে বিজেপি জোটের সমস্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণ দিয়ে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি প্রবেশ করছেন নতুন সংসদ ভবনে, সেই ছবি দেখছেন আপনারা। वाटर क्राइसिस होने से बचाया। मैंने शोर किया, हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा। प्लांट चलने लग गए हैं और मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही है। সংসদে প্রবেশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, সরাসরি নজর রাখবো সেখানে। माननीय सदस्यगण, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है
महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमिका हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और 1 नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने
विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। माननीय सदस्यगण, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तो भी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का